Welcome friends. Yesterday we started chapter 1 on equality. Chapter belongs to class 7th, subject SS. So today we are going to conclude this chapter. We are going to finish this chapter. So I want you guys to please keep concentration on the board. There are some points written on the board. I will highlight all the points. I will explain all the points whatever written on the board. Now, before we start, we have to understand what is equality. Equality means a situation which is same for everyone, for advantage or everything. Situation is the same for everybody. Whatever comes from the government, it has to be distributed between all the people. Not only does the rich people, but to the poor, rich, everybody. So it's a situation. Now, Kanta standing in a queue. Now this story is about Kanta, a woman living in the village. She's standing in a queue. Queue means it's a line for voting in a village. There was an election going on, so she was standing in a line, queue. She found that everybody was standing in the same line. She saw that before 2-3 people, a person standing was his employer. मतलब उसने देखा कि वो जो लाइन में खड़ी थी वहां पे 2-3 लोगों के आगे उसके एम्प्लॉयर खड़े थे. उसे प्राउड फील, उसे अच्छा लगा कि whether you are rich, poor or average person, everybody stand in the same line. There is no inequality. So she was happy. After voting, she went for work because she needed advance. Her daughter was very ill. She was not feeling well. उसे एडवांस चाहिए था तो उसे काम पे जाना था क्योंकि उसकी बेटी थी गुड्डू, वो बहुत बीमार, उसे बुखार हुआ था. She went to work. She finished her work and she asked for the advance. The lady gave the advance and told Kanta, please don't make it your habit. उसे आदत मत बना देना, ऐसे मांगने की आदत मत बना देना. She came back to home. She gave her child a glass of hot water. Not much hot water, but little bit hot water. And she told her daughter that you will feel better after drinking this water. She was living in a slum area. Slum area का मतलब होता है झुपड़पट्टी वाला area. There was a drainage system going behind his house. गटर की एक लाइन जा रही थी. एरिया बहुत खराब था. That is the reason why गुड्डू was feeling ill again and again. वही कारण था कि गुड्डू बीमार होती रहती थी. बार बार एक बार दूसरे दिन. क्योंकि वो एरिया जो था, जो स्लम एरिया में वो रहते थे, वहां पे गंदगी बहुत थी. Lots of dust and vegetable scrap, everything. So she took Gudu to the hospital. She was not rich, so she took her to the government hospital. Government hospital में लेके गई, and she needs to stand in a queue again. In the morning she was standing for voting. Now in the evening time she is standing for treatment. वो अपने बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए लाइन में खड़ी थी. उसके दिमाग में आइडिया आया कि मॉर्निंग में तो रिच पुअर सब लोग इकट्ठा हुए थे एक ही लाइन में, लेकिन व्हाइल नाउ सिर्फ गरीब लोग हॉस्पिटल की लाइन में खड़े हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. She found that there is an inequality. उसे लगा सुबह तो ठीक था, I was really very happy, but now
देयर इज एन अनइक्वालिटी, क्योंकि गरीब लोग ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खड़े हैं लाइन में क्यों में, कोई अमीर तो दिखता ही नहीं है फॉर ट्रीटमेंट, तो उसे बुरा लगा। नाउ अब अनइक्वालिटी कहाँ पे हुई है, तो एग्जाम्पल दी है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक फेमस राइटर है, वो दलित समाज से बिलोंग करते हैं। नाउ व्हाट डज दलित मीन्स, दलित का मतलब क्या होता है? दलित का मतलब होता है टूटा फूटा, नॉट गुड। दलित एक्सप्रेस करता है लोअर कास्ट को, लोअर कास्ट का मतलब होता है वह आदमी दलित है। तो एक एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल है ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक फेमस राइटर है। वाल्मीकि, तो ये जो कास्ट है वाल्मीकि बिलोंग्स टू लोअर कास्ट। लेकिन जब हम बात करें रामायण किसने लिखी थी, तो वाल्मीकि ने लिखी थी, तो उस वक्त हमें ये लोअर कास्ट याद नहीं आती है कि ये जो वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी है, फिर भी हम वो रामायण देखते रहते हैं, वो भी लोअर कास्ट के बिलोंग करते थे, फिर भी नॉट स्टिल देन वी आर वाचिंग द रामायण वेरी केयरफुली। उस वक्त हमें याद नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ एरियाज में जब बात करते हैं तो वी फील दैट इट्स बिलोंग्स टू अ लोअर कास्ट। तो वाल्मीकि जब स्कूल में पढ़ते थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो फेमस राइटर है, जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनके साथ भेदभाव किया जाता था। जो क्लास में बैठते थे वहां सब बच्चों से उन्हें जुदा बिठाया जाता था, सेपरेट बिठाया जाता था। बच्चे बैठते थे वहां पे मैट थी, जब वो बैठने आते तो मैट खत्म हो जाती थी, उन्हें पीछे बैठना पड़ता था, सभी बच्चों के पीछे बैठना पड़ता था, डोर के बाजू में बैठना पड़ता था, तब अनइक्वालिटी थी। क्लास 4th में थे वाल्मीकि, तब उनके टीचर ने उनको पनिशमेंट दिया। क्या पनिशमेंट दिया, तो उनको पूरी स्कूल और प्लेग्राउंड स्वीप करने को बोला, साफ करने को बोला। वो बहुत छोटे थे तो भी पनिशमेंट बहुत बड़ी थी। दिन भर 2-3 दिन तक वो फ्लोर स्वीप करते गए, उनके मुंह में डस्ट घुस गया, उनको बैक में पेन होने लगा, क्योंकि he was only in 4th standard, that means he is around 9 years old, तो वो सिर्फ 9 साल के थे, उनको इतनी बड़ी पनिशमेंट दी गई टीचर्स के द्वारा। फ्लोर साफ करना, बिल्डिंग साफ करना, और इतना बड़ा बिल्डिंग था, इतना बड़ा प्लेग्राउंड था, इट वाज वेरी हार्ड फॉर यू गाइस एंड मी आल्सो, हमारे लिए भी वो टफ था, लेकिन वो तो बच्चे थे, फिर भी उनको पनिशमेंट दिया गया। देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव था। One day his father was passing from there, उनके पिताजी वहां से गुजर रहे थे। He thought that let me have a look, उन्होंने सोचा कि चलो बच्चों को मिलता चलो। वो स्कूल में आए, उन्होंने देखा कि उनके बच्चे से क्या काम करवाया जाता था, उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखा कि उनका बच्चा फ्लोर स्वीप कर रहा है, प्लेग्राउंड साफ कर रहा है, उनको अच्छा नहीं लगा। वो टीचर के पास गए और उनसे कहा कि प्लीज डोंट डू लाइक दिस, ऐसा मत करो। अगर आप सोचते हो कि आप ऐसी पनिशमेंट दोगे तो हम बच्चे को यहाँ से निकाल देंगे, तो यू आर ऑन द रॉन्ग वे, आप गलत सोच रहे हो। मेरा बच्चा तो यहाँ पे पढ़ेगा और दूसरे बच्चे भी यहाँ पे आएंगे, कह के वो चले गए। तो देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन, उनकी वाल्मीकि सरनेम की वजह से, लोअर कास्ट से बिलोंग करने की वजह से उनको सब बच्चों से अलग बिठाया जाता था, उनको मैट नहीं दिया जाता था बैठने के लिए, उनको पानी नहीं दिया जाता, इवन ही वाज नॉट गेटिंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए ग्लास पानी भी नहीं दिया जाता। पनिशमेंट बड़ा था लेकिन वाटर नहीं दिया जाता था। ही वाज वेरी थर्स्टी। ये सब कुछ हो रहा था क्योंकि he belongs to a lower caste, he was Dalit. Now our next example is about Mr. and Mrs. Ansari. तो ये कपल है जो सिटीज में, गांव में रहता था, अब सिटी में माइग्रेट होके आया है। दे आर लुकिंग फॉर द अपार्टमेंट, वो अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं। दे डोंट हैव अ मनी प्रॉब्लम, उनके पास पैसे थे रेंट भरने के लिए, इनफ मनी टू पे रेंट, सो दे थॉट दैट they should go to the
person who can find the house for him. उनको लगा कि एक आदमी के पास जाना चाहिए जो उन्हें घर दिला सके, तो वो गए ब्रोकर के पास. A person who gives you a house on rent. वहां गए, उनसे मिले, उन्होंने कहा I have 3 or 4 apartment for rent. मेरे पास 3 या 4 अपार्टमेंट है रेंट पे देने के लिए. वो कमीशन एजेंट होता है. प्रॉपर्टी तो दूसरे की होती है, लेकिन वो डील करता है, अपना कमीशन लेके दिखाता है. पहले अपार्टमेंट में गए तो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को वो अपार्टमेंट बहुत पसंद आ गया. दे वर रियली हैप्पी. मिस्टर अंसारी प्लान टू स्टे देयर. उनको अच्छा लगा, उन्होंने सोचा कि यहाँ पे रह जाते हैं. लैंड लेडी थी, जो मालिक थी, वो आई. उन्होंने उनसे अपने नाम पूछे, नेम्स. फिर उन्होंने एक्सक्यूज करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा, लैंड लेडी ने कहा कि यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन लोगों को रहना मना है, नाम देखने से. लेकिन एट द सेम टाइम दे वर स्मेलिंग द फिश, कुक्ड फिश that was coming from the next door. बाजू वाले घर से फिश के कुक होने की स्मेल आ रही थी. And the lady was making excuses that no one can stay who is a non-vegetarian. So they were surprised. The person who came with Mr. and Mrs. Ansari और Mr. Ansari दोनों सरप्राइज हो गए कि ये लेडी बोल रही है कि यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन खाना मना है और यहाँ पे तो स्मेल आ रही है फिश की. ओके, नो प्रॉब्लम. फिर 2 जगह, दूसरी जगह गए अपार्टमेंट देखने के, तीसरी जगह गए, चौथी जगह सेम पोजीशन. एक्सक्यूज. क्यों? बिकॉज ऑफ द सरनेम अंसारी. देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन. सरनेम की वजह से डिस्क्रिमिनेशन था. एक्सक्यूज कर रहे थे लैंडलेडी. फिर जो डीलर था, जो उन्हें घर बताने आया था, उनको सजेस्ट किया कि दे शुड चेंज देयर नेम्स, नाम बदल देने चाहिए. लेकिन अंसारी को एग्री नहीं था. He don't want to change his name, surname. It took place for 2 months. ढूंढते गए, एक्सक्यूज आते गए, ढूंढते गए, एक्सक्यूज आते गए, लेकिन आखिर में एक लेडी मिली जिन्होंने उनको रेंट पे घर दिया. At that time there was no discrimination. उस वक्त डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखता था. फिर नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टरनून लंच. तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू की स्टूडेंट्स के लिए, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं. बच्चे, गरीब बच्चे होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते खाना, उनके लिए गवर्नमेंट ने आफ्टरनून लंच फैसिलिटी प्रोवाइड की. कोई गांव में जो तमिलनाडु में था. लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हर एक गवर्नमेंट स्कूल को ये आफ्टरनून लंच प्रोग्राम स्कीम शुरू कर देना है. 6 महीने में, 6 मंथ्स में ये प्रोग्राम शुरू कर देना है. तो 6 मंथ्स के बाद सभी गवर्नमेंट स्कूल में ये आफ्टरनून लंच प्रोग्राम शुरू हो गया. नो वन कैन बी 100% दैट दैट कंट्री इज फ्री ऑफ अनइक्वालिटी. तो कोई कंट्री ऐसा नहीं कह सकता है कि उनके देश में अनइक्वालिटी नहीं है. Everywhere, wherever you go in the world, there is inequality. कोई जगह पे नहीं होती तो दूसरी एरिया में होती है. तो there is an inequality. It's common thing. But I suggest that everyone should be treated equally. हर एक को equally treat किया जाए. Not after looking their religion, caste. We should not make decision. We should treat everyone equally. हर एक को equally treat करना है. उसके कास्ट की वजह से या उसके रिलीजन के तौर पे हमें उसे ट्रीट नहीं करना है. इक्वली ट्रीट करना है सबको. बिकॉज ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड वी ऑल आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. लोकतांत्रिक देश में रहते हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स अस राइट. हमारा जो संविधान है वो भी हमें राइट देता है टू वोट इन एन इलेक्शन इफ यू आर 18 years old. यू शुड नॉट डू डिस्क्रिमिनेशन. ये हमारे राइट्स होते हैं. So this was included in the chapter. Now we have concluded the chapter. Chapter खत्म कर दिया हमने. चैप्टर में देखा कि इक्वालिटी क्या होती है.
कांता के साथ क्या हुआ, उसको कब अच्छा लगा, जब वो इलेक्शन में खड़ी थी लाइन में, जहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए थे, लाइन में खड़े थे, गरीब लोग अमीर लोग सब, तो उसको अच्छा लगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड इन द इवनिंग टाइम जब वो गवर्नमेंट लाइन में खड़ी थी हॉस्पिटल में अपने बच्ची गुड्डू के इलाज के लिए, तब उसे थोड़ा इम्बैलेंस फील हुआ, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शी फाउंड दैट देयर इज एन अनइक्वालिटी गोइंग इन आवर कंट्री। फिर उसकी बेटी जहाँ पे रहती थी, वो जगह पे रहती थी वो स्लम एरिया था, झुपड़पट्टी वाला एरिया था, वहाँ से गटर बह रही थी पीछे से। उसका रीजन था कि गुड्डू बार बार बीमार पड़ती थी। अनइक्वालिटी के हमने एग्जाम्पल लिए थे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो अच्छे राइटर है, लेकिन उनकी सरनेम की वजह से उनके साथ अच्छे से ट्रीट किया नहीं जाता था, स्कूल में उनको अलग बिठाया जाता था, पनिशमेंट दिया जाता था, क्लीनिंग करना था, सब करना पड़ता था। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी उनकी सरनेम की वजह से उनको रेंट पे कोई घर नहीं दे रहा था, अपार्टमेंट नहीं दे रहा था, इवन दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी, पैसे थे उनके पास, लेकिन कोई उनको रेंट पे घर नहीं देना चाहता था। गवर्नमेंट स्कीम के बारे में हमने बात की कि गवर्नमेंट ने आफ्टरनून लंच की एक स्कीम शुरू की, पहले तो एक स्कूल में हुई जो तमिलनाडु में था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 6 महीने में सभी गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया में सभी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे ये प्रोग्राम आफ्टरनून लंच का बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए शुरू कर देना है। Guys, thank you for watching my video. It was pleasant to see you, and I hope that you understood all the points that covers the chapter. Thank you.